Very good morning, children. Let's move on to more focus on circles. We started with standard equation of circle, that is x square plus y square equal to a square. Then we moved on to a very famous equation of circle, that is center radius form, x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. We always made it fixed that let center coordinates be h comma k for simplicity, correct? Center coordinates be h comma k and radius be r. Then we learned diameter form. If the end points of diameter are given, still we can find the equation of circle directly. Yes. Now let us move into general equation of circle. How does an equation of circle look like no matter where the center is? Okay. So if I talk about general equation of circle, it is nothing but x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is my general equation of circle. Remember that coefficient of x square and coefficient of y square should always be 1. To make it a circle, coefficient of x square and coefficient of y square should be 1. Okay, let us again revise our center radius form and let us compare center radius form with general equation. तो center radius क्या है? X minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. So if I open this, क्या आएगा? X square minus 2xh plus h square plus y square minus 2ky plus k square equal to r square. Now write this equation similar to the general equation of circle. तो क्या आएगा? X square plus y square minus 2xh minus 2ky plus h square plus k square minus r square equal to 0. So if I compare the general equation with this equation, what will I get? I will get minus 2h as 2g, correct? Then similarly minus 2k as 2f, बराबर, and my c will be equal to h square plus k square minus r square. अब हमें पता है किसी भी सर्कल का सेंटर हम क्या लिखते हैं? h comma k. क्या लिखते हैं? h comma k. So if I compare here, so what I'm getting h as now? h आ रहा है minus g, k आ रहा है minus f. That is, if this equation is given, I will say my center is nothing but minus g comma minus f. किसी भी सर्कल का अगर जनरल इक्वेशन दिया है, by comparison we conclude that minus g, that is coefficient of x divided by 2, x के coefficient को 2 से divide करके minus sign दिया और y के coefficient को divide by 2 करके minus sign दिया, it becomes center of that circle, correct? क्योंकि हमें h comma k कितना मिल रहा है? minus g comma minus f. Similarly we know radius of circle is r. इस जनरल इक्वेशन के सर्कल का रेडियस क्या होता है? r. तो यहाँ से r स्क्वायर कितना आ रहा है? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c. नाउ वी नो h का मतलब होता है माइनस g, तो मेरा r स्क्वायर आएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. दैट इज radius of general circle will be g square plus f square minus c. In short, if general equation of circle is given, by comparison we get center as minus g minus f and radius as square root of g square plus f square minus c. Radius क्या आएगा? g square plus f square minus c का square root. Now if the radius comes out to be greater than 0, if the radius comes out to be greater than 0, then that equation represents a circle, and that equation represents a circle. Understood? G square plus f square minus c
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, इक्वल टू 0 है तो इट विल बी अ पॉइंट, इक्वल टू 0 है तो क्या आएगा, पॉइंट आएगा, करेक्ट। एंड इफ इट इज लेस देन 0, अभी देखो वो रूट के अंदर है, सो इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 आता है, it means it does not represent any point in the plane, it does not represent any point in the plane, understood। so general equation of circle अगर दिया है, then center is minus g minus f and radius is square root of g square plus f square minus c, and the most important thing, x square और y square का कोएफिशिएंट हमेशा 1 चाहिए, x square और y square का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। Okay, let's practice certain sums. Now see, find center and radius of the following circles. अब इन दोनों सर्कल्स के इक्वेशन को जनरल से कंपेयर किया तो जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो बाय कंपेरिजन आपको 2g कितना मिलेगा, माइनस 2, 2f कितना मिलेगा, 4, C कितना मिलेगा, -4, करेक्ट। देयरफॉर G कितना आया आपका, -1, F कितना आया आपका, 2, करेक्ट। सो नाउ वी नो सेंटर क्या होता है, -G, -F, दैट इज नथिंग बट सेंटर आएगा 1, -2, क्या आएगा सेंटर, सेंटर आएगा 1, -2, आर यू गेटिंग इट। नाउ रेडियस क्या है, फॉर्मूला रेडियस का, रेडियस इज g square plus f square minus c, correct, that is 1 square minus 2 square minus c कितना है, -4 है, करेक्ट। सो ये हो जाएगा 1 plus 4 plus 4, सो इन शॉर्ट रेडियस कितना आएगा, 3, कितना आएगा रेडियस, 3। सो दिस इज अ सर्कल वो सेंटर इज 1, -2 and radius is 3। If you remember in the last lectures I taught you without using this formula, correct, हमने x और y के perfect squares बनाए थे, क्या बनाए थे, x और y के perfect squares, correct। now second sum में देखो, if you see the coefficient of x square and y square are not 1, the coefficient of x square and y square are not 1, so first I will divide by 4, जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x square plus y square minus 6x minus 2y minus 6 इक्वल टू 0। अगेन कंपेयर करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2g, दैट इज -6, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, 2f, दैट इज -2, c कितना है, -6, बराबर। तो सेंटर -g -f कितना आएगा, 3, 1, क्या आएगा सेंटर, 3, 1, और रेडियस क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट इज 3 स्क्वायर इज 9, ये 1 माइनस ऑफ -6, 16 आएगा, सो आर विल बिकम 4, कितना हो जाएगा आर, 4, अंडरस्टूड, क्लियर एवरीवन। जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ जनरल सर्कल, याद नहीं आता है अगर, सिंपल, मेक x का परफेक्ट स्क्वायर, मेक y का परफेक्ट स्क्वायर, कंपेयर करो एंड राइट द आंसर, अंडरस्टूड, यस। नेक्स्ट, शो दैट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, सो इफ आई डिवाइड इट बाय 3 क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 11/3 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे अगेन, 2g कितना आएगा, 4, 2f कितना आएगा, 6, c कितना आएगा, माइनस 11/3, करेक्ट। देयरफॉर इफ एट ऑल इट इज अ सर्कल, है ना, तो सॉरी, देयरफॉर g कितना आएगा, 2, f कितना आएगा, 3। नाउ यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, बिकॉज हमें चेक करना है कि सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि नहीं है। टू चेक
whether it represents a circle or not, I need to find the value of g square plus f square minus c. तो g square कितना आएगा 2 square plus f square कितना आएगा 3 square minus c, correct? That is 4 plus 9 plus 11 by 3 कितना आएगा 13 plus 11 by 3, correct? That is 39 plus 11, 50 by 3. No matter what is the value, but इतना मालूम है कि this value is greater than 0. That is, since g square plus f square minus c is greater than 0, therefore it represents a circle. Therefore it represents a circle. What can I say? It represents a circle. Understood? Clear everyone? Now let's move on to some interesting sums with some concept of circle and some of your basic concepts of circle that you've learned till 10th standard. The question is, find the equation of circle of radius 5. एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रेडियस कितना है 5. उस रेडियस इज 5 and is concentric with the circle. Let us imagine that this is my required circle. ठीक है, इस सर्कल का रेडियस 5 है, ये सर्कल इस सर्कल को कॉन्सेंट्रिक है. तो let us find the radius of this circle. My required circle is concentric with this circle. इसका मतलब गिवन सर्कल और मेरे सर्कल का सेंटर सेम होना चाहिए, करेक्ट? लेट अस से दिस. लेट अस से इमेजिन करते हैं कि फर्स्ट सर्कल गिवन है, सेकेंड आई हैव टू फाइंड. सिंस दे आर कॉन्सेंट्रिक, दोनों सर्कल का सेंटर क्या होगा? सेम होगा. क्या होगा? दोनों सर्कल का सेंटर सेम, करेक्ट? नए सर्कल का मतलब सेकेंड सर्कल का रेडियस मुझे मालूम है, सिर्फ मुझे सेंटर निकालना है. सेंटर कहां से मिलेगा? फ्रॉम कंपेरिजन. 2g कितना आ रहा है? -6. 2f कितना आ रहा है? 4. देयरफॉर गिवन सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है? इफ आई से सेंटर, सेंटर आता है -g -f, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3, -2. मतलब दोनों सर्कल का सेंटर कितना आएगा? 3 -2, बिकॉज दे आर कॉन्सेंट्रिक. नाउ आई वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 5 and whose center is 3, -2 and radius is 5. So now I can say by center radius form क्या आएगा? x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. correct? इसको ओपन करो तो x square minus 6x plus 9, y square plus 4y plus 4 equals 25. Therefore required equation क्या आएगा? x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equal to 0. Now ध्यान से देखो तुम्हारा आंसर और गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल 80% दे विल बी सेम. x स्क्वायर y स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, 6x और 4y भी सेम है, बिकॉज सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक. सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है. तो व्हाट वाज गिवन चिल्ड्रन? रेडियस वाज डायरेक्टली गिवन टू यू, सेंटर थोड़ा घुमा फिरा के दिया था. क्या हुआ था? सेंटर थोड़ा घुमा फिरा के दिया था. अंडरस्टूड? क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल concentric with the circle and having its area 16 pi square units. तो ये क्वेश्चन भी सेम है. इंस्टेड ऑफ गिविंग रेडियस दे हैव गिवन कि जो नया सर्कल है उसका एरिया 16 पाई है. सो लेट आर बी द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल. सो एरिया ऑफ न्यू सर्कल कितना दिया है? 16 पाई. यू नो एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? देयरफॉर इन शॉर्ट नए सर्कल का रेडियस कितना दिया है? 4. कितना दिया है नया सर्कल का रेडियस? 4. करेक्ट? नाउ सिंस रिक्वायर्ड सर्कल, जो सर्कल मुझे चाहिए, इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल,
इज कॉन्सेंट्रिक विद गिवन सर्कल, तो मुझे गिवन सर्कल का सेंटर निकालना पड़ेगा। तो गिवन सर्कल का सेंटर निकालने के लिए पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 39/2 इक्वल टू 0, है ना। इस सर्कल का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर क्या होता है, -g माइनस f। ये सेंटर पुराने सर्कल का और नए सर्कल का क्या होगा, सेम, बराबर। तो कंपेयर करोगे, -g कितना आएगा, -2, बराबर, और -f कितना आएगा, -5/2। कितना आएगा -f, -5/2। मतलब मुझे जो नया सर्कल है इसका सेंटर मुझे पता है, इसका रेडियस भी मुझे पता है। कितना रेडियस इसका, 4, करेक्ट। सो आई कैन अगेन अप्लाई व्हाट, सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या आएगा, न्यू इक्वेशन ऑफ सर्कल, x + 2 द होल स्क्वायर y + 5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 4 प्लस 25/4 माइनस 16 इक्वल टू 0। आया समझ में। अबे तुम सॉल्व करो एंड यू कैन राइट द आंसर। क्या आएगा, न्यू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y। तो यहाँ तक फिर से सेम आया बिकॉज कॉन्सेंट्रिक था। 16 प्लस 25 माइनस 64, ये कितना आएगा, 16 प्लस 25 माइनस 64 अपॉन 4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? Yes, everyone. Next, find the equation of circle concentric with the circle. Again same है, since the circle is concentric, center क्या आएगा नए सर्कल का, -g माइनस f, दैट इज इसको डिवाइड बाय 2 करके ऑपोजिट करेंगे तो 2 आएगा, इसको डिवाइड बाय 2 करके ऑपोजिट करेंगे तो -3 आएगा। मतलब मेरा नया सर्कल जो है, जो मुझे चाहिए, उसका सेंटर है 2, -3, मतलब समवेयर हियर 2, -3 एंड इज टचिंग y एक्सिस। तो ऐसा कुछ आएगा, इट इज टचिंग y एक्सिस। रफ डायग्राम आई हैव ड्रॉन, ये 2, -3। नाउ सिंस सर्कल टचेज y एक्सिस, सर्कल अगर y एक्सिस टच कर रहा है तो आपको पता है रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है, क्या होता है रेडियस, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। क्या होता है रेडियस, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, बराबर। देयरफॉर रेडियस कितना आया बच्चों, 2। रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस कितना आया, 2। रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर मुझे पता है। सो अगेन बाय सेंटर रेडियस फॉर्म क्या आएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, x - 2 the whole square y + 3 the whole square is equal to 4। ओपन करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 4 + 9 13, 13 - 4 9। तो इक्वेशन आएगा ये। अगेन देखो कॉन्सेंट्रिक था, सिर्फ कांस्टेंट बदला है, बाकी सब कुछ सेम है। क्या बदला है, सिर्फ कांस्टेंट बदला है, बाकी सब कुछ सेम है। Understood? So this was all about the concentric circles. Now let us move on to some more typical sums from circle chapter. Find the equation of circle whose center is at 4, 5। एक सर्कल है, इसका सेंटर 4, 5 पे है। You have to find the equation of circle whose center is at 4, 5 and which passes through center of the circle। मतलब जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इसके सेंटर से पास हो रहा है, इस सर्कल के सेंटर से। सो लेट अस फाइंड सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का सेंटर कितना आएगा, -g माइनस f, मतलब कितना आएगा, -2, 3। क्या आएगा, -2, 3। जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर कितना आएगा,
-2, 3। इस पॉइंट से मेरा रिक्वायर्ड सर्कल पास हो रहा है, मतलब दूसरा सर्कल मेरा ऐसा है कुछ, इसके सेंटर से पास हो रहा है ना, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसा कितना है, यस कितना है इस सर्कल का सेंटर, -2, 3, करेक्ट। इसको ले लो C, इसको ले लेते हैं P, ठीक है, अवॉइड कंफ्यूजन लेट अस राइट दिस एज P। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर दिया है 4, 5 और वो P पॉइंट से पास हो रहा है, और P पॉइंट क्या है, किसी और सर्कल का सेंटर। तो मैंने पहले उस सर्कल का सेंटर फाइंड किया। नाउ आई नो सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज 4, 5। सिर्फ क्या मिसिंग है, रेडियस मिसिंग है। क्या मिसिंग है, रेडियस। तो रेडियस तो मैं निकाल ही सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से। वो क्या आएगा, 4 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर, 5 - 3 the whole square, because you know that CP will be the radius of circle। तो CP कितना आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36 और ये 4 40, तो CP कितना आ रहा है, √40। सर्कल का सेंटर मालूम है, सर्कल का रेडियस मालूम है। सो अगेन आई कैन अप्लाई बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या आएगा, x - 4 द होल स्क्वायर, y - 5 the whole square is equal to 40, that is x square plus y square minus 8x minus 10y plus 1 is equal to 0। आया समझ में, ये आएगा मेरे सर्कल का इक्वेशन। क्रॉस वेरीफाई करना है तो चेक करो, -2, 3 पुट किया तो आंसर 0 आना चाहिए, -2, 3 पुट किया तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। अंडरस्टूड। Next, find the equation of circle which passes through center of the circle x square plus y square plus 8x plus 10y minus 7 equal to 0 and is concentric with the circle। तो देखो हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। जो सर्कल रिक्वायर्ड है वो कॉन्सेंट्रिक है, इसको तो इसका सेंटर फाइंड करते हैं। मतलब इसको नाम, इसका सेंटर क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। इसका सेंटर और मेरे सर्कल के सेंटर का एक कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -6y, करेक्ट। सेंटर क्या आएगा इसका, 2, 3। इसका डिवाइड बाय 2 ऑपोजिट, इसका डिवाइड बाय 2 ऑपोजिट। दिस इज द सेंटर ऑफ माय रिक्वायर्ड सर्कल। डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, ये मेरा सेंटर है 2, 3, ठीक है। इसी सर्कल को कॉन्सेंट्रिक मेरा सर्कल है, लेट अस से दिस इज माय रिक्वायर्ड सर्कल, ये मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है एंड दिस सर्कल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ दिस सर्कल। मतलब ये और एक सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है ना, इसका सेंटर कितना है वो निकालते हैं P। मतलब इसका सेंटर आएगा, कितना आएगा सेंटर, ऑब्जर्व इट केयरफुली। सेंटर क्या मिलेगा, -4, -5, करेक्ट। तो जो मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है उस सर्कल का एक पॉइंट क्या हो गया, -4, -5, और उस सर्कल का सेंटर कितना हो गया, 2, 3, करेक्ट। अब मुझे नए सर्कल का सेंटर मालूम है, आई नो सेंटर ऑफ द न्यू सर्कल, करेक्ट। और मुझे रेडियस पता है, रेडियस क्या आएगा, CP, दैट इज 2 + 4 द होल स्क्वायर प्लस 3 + 5 द होल स्क्वायर। तो मेरा CP आएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 10। मतलब नए सर्कल का रेडियस मुझे मालूम है, नए सर्कल का सेंटर मुझे मालूम है। सो अगेन आई कैन अप्लाई बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या आएगा, x - 2 द होल स्क्वायर y - 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, करेक्ट। इसको ओपन करो, आपको सर्कल का इक्वेशन मिलेगा, ओके। अंडरस्टूड। नाउ ओपन द ब्रैकेट, यू विल गेट द आंसर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -6y प्लस 4 प्लस 9 -100 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा। अंडरस्टूड, यस। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल द एंड पॉइंट्स of whose diameter
आर सेंटर्स ऑफ द सर्कल? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक सर्कल है, इसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर जो है, सपोज मेरा ए बी डायमीटर है, तो ए इज नथिंग बट सेंटर ऑफ वन ऑफ द सर्कल एंड बी इज ऑल्सो सेंटर ऑफ वन ऑफ द सर्कल. करेक्ट. तो पहले सर्कल का सेंटर निकाला तो मुझे ए मिल जाएगा, दूसरे सर्कल का सेंटर निकाला तो बी मिल जाएगा. द मोमेंट आई गेट ए बी, दोज ए एंड बी आर नथिंग बट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, so I can find equation of my circle. So let us say a क्या आएगा मेरा, कंपेयर किया 6x डिवाइड बाई 2 दैट इज -3, -14 डिवाइड बाई 2 का माइनस किया तो 7 बराबर. ये इस सर्कल का सेंटर निकाला मैंने. अब मैं इस सर्कल का सेंटर निकालूंगा b. करेक्ट. 4x डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, माइनस है तो प्लस, 10y डिवाइड बाई 2 that is 5 को opposite -5. Now I know that AB are end points of diameter, so by diameter form I can find the equation of circle, that is x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equal to 0. ये है मेरा x1 y1, ये है मेरा x2 y2, that is x minus x1 x minus x2 y minus y1 y minus y2 equal to 0. ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस 2y minus 41 equal to 0. This will be my equation of circle with AB as end points of the diameter. Understood? Clear? सबको समझ में आ रहा है? से indirectly information about center radius दिया होता है, आपको सिर्फ वो center और radius find करना है. The moment you find center and radius, आप center radius फॉर्म अप्लाई करो, आपको आपका equation मिल जाएगा. It is better to draw the diagram, because visualization से it will become more easy to find the equation. Okay, always prefer drawing a rough diagram for circle chapter. Okay, next, find the equation of circle passing through the vertices of a triangle whose sides are represented by the equation. एक सर्कल है जो वर्टाइसेस से पास हो रहा है, किसके, ट्राइंगल के. मतलब कुछ ऐसा होगा सर्कल. Now here I'll not solve the entire sum, I'll just give you the hint. अब देखो, आपको equation of AB दिया है, correct? whose equations are x plus y minus 2 equal to 0, BC दिया है 3x minus 4y minus 6 equal to 0 and AC दिया है x minus y equal to 0. अब देखो, अगर आपने AB और BC को simultaneously solve किया, I'll just mention the steps. सॉल्व ए बी एंड बी सी. ए बी और बी सी को सॉल्व किया, आपको बी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. क्या मिलेगा आपको, बी के कोऑर्डिनेट्स. सिमिलरली ए सी एंड बी सी सॉल्व किया, आपको सी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. ए सी और बी सी को साइमल्टेनियस सॉल्व किया, आपको सी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. करेक्ट. और आपने अगर ए बी और ए सी को सॉल्व किया तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. बराबर. The moment you get three coordinates, assume your center to be h, k. क्या करोगे, सेंटर अज्यूम करोगे h, k. तो क्या मिलेगा, CA is equal to CB and CB is equal to, sorry, O ले लो, सेंटर O ले लो, make it easy. So OA is equal to OB मिलेगा and OB is equal to OC मिलेगा. इसका एक इक्वेशन, इसका एक इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करो, आपको सेंटर मिलेगा h, k. इफ यू सॉल्व OA is equal to OB and OB equal to OC, सॉरी, if you solve OB equal to OC, दोनों इक्वेशन में h k आएगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, you will get center. क्या मिलेगा, सेंटर. The moment you get center, you find the radius. What is the radius, OA. Once you find center, find radius, that is OA, and after finding radius,
you can apply center radius form. What you can do, you can apply center radius form to find the equation of circle. You can apply center radius form to find the equation of circle. Understood? Clear? Any doubts till here? Yes? No doubts? Okay. Show that the equations x equal to a cos theta plus b sin theta, y equal to a sin theta minus b cos theta represents a circle. आपको सिर्फ बताना है कि इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करता है. इन शॉर्ट इसको सर्कल रिप्रेजेंट करना है, पैराबोला करना है, इलिप्स करना है, जो भी कर्व आता है पहले आपको एलिमिनेट थीटा करना है. क्या करना है? एलिमिनेट थीटा. तो क्या करूंगा मैं? आई विल स्क्वायर एक्स, आई विल स्क्वायर वाई एंड ऐड देम. मैं एक्स और वाई को स्क्वायर करके ऐड करता हूं. सेम हमने एलिमिनेट थीटा ट्रिग्नोमेट्री में किया था, इफ यू रिमेंबर. सो आई विल स्क्वायर एंड ऐड देम. सो लेट अस सी व्हाट वी गेट. क्या आएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा. जानबूझ के नीचे लिख रहा हूं सेकंड वाला टर्म, दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा minus 2ab cos theta sin theta. If I add these two, ये और ये कट हो जाएगा. फर्स्ट में से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है? 1 बराबर. सेकंड में से b स्क्वायर कॉमन निकलेगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर. देयरफॉर मुझे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. करेक्ट. और ध्यान से देखा, इसको कंपेयर किया विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है. क्या है ये? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. where radius will be a square plus b square का स्क्वायर रूट. रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद रेडियस क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको आर स्क्वायर लिखो. इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, वन मोर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. शो दैट द पॉइंट एक्स वाई lies on a circle for all values of t. Lies on a circle for all values of t. तो अगेन सर्कल बोला है, तो अगेन आई कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्या कंसिडर करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. इफ यू सी डिनोमिनेटर सेम है तो आई कैन ऐड देम. न्यूमरेटर क्या आएगा? 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये 1 माइनस टी स्क्वायर का भी स्क्वायर है ना. तो लेट्स ओपन दिस. 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये क्या आएगा? 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t रेज टू 4 है ना. 1 प्लस t स्क्वायर द होल स्क्वायर. तो हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी रेज टू 4 है ना. अभी न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो क्या मिलेगा? 4a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर कितना आएगा? 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी रेज टू 4 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. ऊपर से a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा. क्या बचेगा? टी रेज टू 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1. डिनोमिनेटर को ओपन करो. 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 आएगा. तो देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कट. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है बच्चों? ए स्क्वायर. सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल. क्या मिलेगा? इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल.
अंडरस्टूड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जेई मेंस में अगर आया तो बोलेंगे इफ द पॉइंट्स आर x, y, टेल विच लोकस इट रिप्रेजेंट्स, तो आपका आंसर आएगा सर्कल। क्या आएगा? विच लोकस इट रिप्रेजेंट्स बोला तो टू ट्रायल एंड एरर करना है, और आपको x² + y² इक्वल टू a² मिला। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अंडरस्टूड? यस। लास्ट, show that 5, 5, 6, 4, -2, 4 and 7, 1 are concyclic. Concyclic का मतलब है all 4 points are lying on the circle. Concyclic का मतलब क्या है? All 4 points are lying on the circle. कैसे करोगे? हम assume करेंगे let the circle pass through the 3 points. I'll assume that let the circle pass through the 3 points. तो हम 3 points हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं. So I'm assuming that let 5, 5, 6, 4, -2, 4 lie on circle. अब उन सर्कल पता नहीं है तो I'll assume a standard general circle. So what I'm assuming that 3 points are lying on the circle. उन 3 points की मदद से first I'll find the equation of circle. The moment I get equation of circle, वो जो 4th point है, I'll substitute and check whether it satisfies the equation of circle. अगर वो equation of circle satisfy करता है, इसका मतलब all 4 points are lying on the circle. The points are concyclic. Correct? अब we have assumed that 5, 5 lie करेगा, तो पहला equation क्या हो जाएगा? 25 + 25 + 10x plus 10g plus 10f plus c equal to 0. क्या कर रहा हूं मैं? Since this point is on the circle, it should satisfy the equation, that is 10g, रहने दो इसको ऐसे ही, 50 plus 10g plus 10f plus c equal to 0 is my first equation. Similarly, I'll put 6 and 4. The moment you put 6 and 4, कितना आएगा? 6² 36 plus 4² 16. कितना आएगा? 6² 36 16 मतलब 52. 52 plus 2 6 12g plus 8y plus c equal to 0. Equation number 2. Similarly, -2, 4 भी lie करेगा, तो -2 का स्क्वायर 4 और 16, तो आएगा 20 -4g plus 8y plus c equal to 0. थर्ड इक्वेशन. ठीक है? नाउ आई विल सॉल्व ऑल दिस 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली. सॉरी, ये f आएगा. Sorry for the mistake. This should be f. Now I'll solve 1, 2 and 3 equations simultaneously to get the value of g, f and c. To get the value of g, f and c. अगर ध्यान से देखोगे, अब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व किया, आपको डायरेक्टली g मिल जाता है. कैसे? हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. 52 plus 12g. It's up to you how you solve the equation, children. हमें सिर्फ g, f और c से मतलब है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ये और ये कट. 52 - 20 कितना आएगा? 32. सो 32 12 + 4 16 इज इक्वल टू -16g आएगा. देयरफॉर g कितना आ गया? -2. कितना आ गया g मेरा? -2 आ गया. करेक्ट? सिमिलरली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ g. g के सब्स्टिट्यूट किस में करोगे? यू कैन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 1 and 2. 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, क्या मिलेगा? -2 -2g plus 2f इज इक्वल टू 0. इसे और इसे सब्ट्रैक्ट किया, 50 - 52 -2, 10 - 12 -2g, 10 - 8f 2f, c 0. So -2
g कितना है -2 है बच्चों, कितना है g -2, तो ये +4 + 2f इज इक्वल टू 0। देयरफॉर f कितना आएगा बच्चों -1, कितना आएगा f -1। आपको f मिल गया, g मिल गया। अब f और g को किसी भी इक्वेशन में डालो, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में पुट किया तो 50 10g मतलब -20, 10f मतलब -10 प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर 30 20, c कितना आएगा -20। क्या है मेरा c बच्चों -20। आपको g मिल गया, f मिल गया, c मिल गया। इन शॉर्ट इन सब की वजह से आपको क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। So therefore I can say my equation of circle passing through 3 points है ना, passing through given 3 points क्या आएगा, if you solve it आपको मिलेगा x² + y² -4x -2y -20 इक्वल टू 0। करेक्ट, बराबर। अब मुझे चेक करना है क्या 7,1 lie on this circle, so I will say LHS x² + y² कौन सा पॉइंट 7,1, तो I'll assume x as 7 y as 1, तो 7² + 1²। अगर 0 आंसर आया मतलब लाई करेगा, नहीं आया तो लाई नहीं करेगा। 28 - 2 -20, तो 50 - 50 कितना आ रहा है 0, दैट इज RHS, दैट इज 7,1 लाइज ऑन सर्कल। पहले 3 पॉइंट्स लाई कर रही है, हमने अज्यूम ही किया था 7,1 भी लाई कर रहा है। सो आई कैन से गिवन पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। व्हाट विल आई से, गिवन पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। अंडरस्टूड? This was all about finding the equation of circle from the given set of information or finding the information from the given equation of circle. Okay, the next class we'll be learning about some properties of tangent with respect to circle. That is, we'll try to find equation of tangent with respect to a circle at a point and from the point. Okay, thank you.